for the area. The moment of inertia for the area. Okay. So okay. So if see, this is the region and this yellow color is the element, and we want to know the moment of inertia of this yellow color element. Then how we going to calculate? Ixx means in the x direction. Ixx means in the x direction. So this is the area. So what happened in the x direction? This is the parallel distance. The definition is the product of elemental area and square of perpendicular distance. So this distance is not perpendicular to the surface. So y is the perpendicular distance. So dA is square and I y is the dAx square. So the easy to remember this formula. If here xx, then here y, and if here y, then there is the xx. Okay. So this is a simple diagram or simplest diagram where we explain the shape. Okay. So it is also called the second moment of inertia, second moment of area. It is also called the second moment of area because the first moment of element area is dA into y and the dA into x. And if it is again multiplied by the distance, we got the second moment of element area as dA y into y and dA x into x. So the meaning is that the moment of inertia is also have another the second moment of area. Okay, so first moment of area is like we calculate the moment. Okay, force into the perpendicular distance. Similar, uh, we place the force with the area, then we get the dA into y, and if we take the second moment of area, that is called the moment of inertia. So here this is first we multiply y, then this is become second moment of inertia in x direction, and this is the in the y direction. Okay, so the next thing, polar moment of inertia. So what is the polar moment of inertia is now? Okay, so actually the polar moment of inertia is nothing but inertia moment of inertia in the z direction. The moment of inertia in z direction. Okay, because Ixx is represent of inertia in x direction, Iyy represent the moment of inertia in y direction. So here, if we calculate the moment of inertia in z direction, then the moment of inertia in z direction is called polar moment of inertia. Okay, so this is also called the perpendicular theorem. What is that?
The moment of inertia of an area about an axis perpendicular to the plane of the area is called the polar moment of inertia, and it is denoted by the symbol IZZ, capital JRIP. Okay, so IZZ, capital JRIP, all are same. That is called the polar moment of inertia. Okay, the moment of inertia of an area is xy plane, xy plane with respect to z. Axis is IZZ equal to IP equal to J equal to integration of I square dA. Okay, so अब R क्या है? R आपका देखिए यहाँ से, ठीक है, ये R है, तो ये डिस्टेंस आपका क्या है? 3। अगर हम ये ट्रायंगल ले, नाम दे देते हैं ए बी एंड ओ, ए बी एंड ओ, तो ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हमको अगर आर मालूम करना है तो आर हम क्या लिख सकते हैं? आई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, so we put the r square as a x square plus y square in this particular formula, and this is the integration. So integration is great with these two. So x square dA plus y square dA. So what is that? This is I y y, and this is I x x. These formula in you get here IXX and IYY. So similarly we get here IYY and IXX. So here this is the IXX IYY. So the moment of inertia about direction is nothing but it is the some addition of moment of inertia in x direction and moment of inertia in y direction. Now, what is the perpendicular axis theorem? Okay. The perpendicular axis theorem is totally depend on the polar moment of inertia, and polar moment of inertia for an area with respect to an axis perpendicular to its plane of area is equal to the sum of moment of inertia about any two mutually perpendicular axes in its plane passing through the point of intersecting of the polar axis and the area। ठीक है ना? तो इनका कहने का मतलब ये है कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या है कि अगर आपका ये दो प्लेन है और ये आपका जेड एक्सिस है, ठीक है ना, तो अगर हमको ये आपका आई वाई वाई, आई एक्स एक्स, ओके,
and this is iz about the z एक्सिस। तो इसमें क्या है कि हम कोई भी एक एक्स दो एक्सिस मालूम है तो हमको तीसरे एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट हो जाएगा। दैट इज द IZZ is the polar moment of inertia। So IZZ equal to IXX plus IYY means moment of inertia about the x-axis plus moment of inertia about the y-axis is equal to the moment of inertia in z-axis। See, parallel axis theorem. What is the parallel axis theorem now? ठीक है ना, यहाँ पे एक एक्सिस है y, ठीक है ना, और यहाँ पे दूसरी एक्सिस है y डैश। सो क्या है कि जो y है और y डैश है वो आपस में एक दूसरे से पैरेलल है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक ये देखिए एक पॉइंट येलो कलर का पॉइंट शो हो रहा है। दिस येलो कलर पॉइंट, दिस येलो कलर पॉइंट इज the a small area called DA। Okay, so this is the x axis and this is the x not axis। so जो आपका x नॉट है वो आपका x एक्सिस के पैरेलल है और ये जो y एक्सिस है वो y डैश के पैरेलल है। ओके, so now see what is the IXX now। see integration dA y square, okay, equal to dA। अभी y स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ये डिस्टेंस कितना है, ये आपका d है ना, और ये आपका y है। तो y को हम लिख सकते हैं d प्लस वाई डैश, ये d प्लस वाई डैश का स्क्वायर। ओके, इसका होल स्क्वायर ओपन कर, ये है बार। ओके, ये देखिए ये बार लगा डी बार एंड वाई डैश। तो यहाँ पे देखिए डी बार स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर प्लस 2 डी बार वाई डैश। तो अभी अगर इसको एक्सटेंड कर देते हैं तो ये इंटीग्रेशन का सिंबल अलग अलग डिवाइड होता है। तो यहाँ पे देखिए डी ए डी बार स्क्वायर प्लस डी ए वाई स्क्वायर प्लस 2 डी डी ए वाई डैश। तो यहाँ डी डी बार स्क्वायर अगर हम देखें तो ये आपका बार का मतलब होता है कि ये पॉजिटिव रहता है किसी भी हाल पर। तो इन एनी कंडीशन डी बार इज अ पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। तो ये स्क्वायर यहाँ पे है, तो यहाँ पे देखिए कि डी स्क्वायर इंटीग्रेशन इक्वल टू डी बार स्क्वायर। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं we can consider that dA y bar square equal to I x naught। ये जो सिंबल है मीन्स ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ से देखिए ये एक्स नॉट है ना, तो यहाँ से देखिए ये डिस्टेंस कितनी है एक्स नॉट से वाई बार। तो एक्स नॉट निकालना है तो क्या हो जाएगा डी ए वाई डैश स्क्वायर। सो वही सेम थिंग्स आपको यहाँ पे दी हुई है और यहाँ पे देखिए क्या है 2 डी बार। तो ये क्या है, ये कांस्टेंट है, दिस इज द कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का जब ये हमारा इंटीग्रेशन होगा दैट शुड बी 0।
तो अभी अगर हम इसको देखेंगे तो ये चीज कट के जीरो हो गई, दिस इज जीरो। तो रिमेनिंग क्या बचा हुआ है? रिमेनिंग आपका ये है डी स्क्वायर डी ए दैट इज इक्वल टू ए डी बार स्क्वायर। तो इसकी जगह पे हमने ये पुट किया और ये जो वैल्यू है किसके इक्वल टू है? आई एक्स नॉट के। सो आई एक्स इक्वल टू आई एक्स नॉट प्लस ए डी स्क्वायर। ओके, हेंस अभी इसका मीनिंग क्या हो? मोमेंट ऑफ इनर्शिया of any area about an axis xx is equal to moment of inertia about the parallel centroid axis plus the product of total and the square of distance between two axes। ठीक है ना? तो ये पैरेलल मोमेंट ऑफ थ्योरम हो गया है ना। तो इसमें क्या है कि अगर हमको किसी पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट मोमेंट नोन है, वी नो दी मोमेंट, ठीक है ना। और किसी पर्टिकुलर एक्सिस जो कि एक्सिस पैरेलल है, ठीक है ना। अभी देखिए जैसे ये एक्सिस है और ये एक्सिस है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक आपका एरिया है ना। और इसका एरिया ए है, ठीक है ना। और ये आपका वाई है और ये आपका एक्स है, ठीक है ना। तो यहाँ से हम ये जान सकते हैं कि आई एक्स एक्स ये क्या होता है? ये आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर डी ए। ओके, सो यहाँ पे पैरेलल एक्सिस ऑफ थ्योरम क्या कहती है कि मान लीजिए ये एक एक्सिस है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है और इसका डिस्टेंस कितना है? मान लीजिए डी है। कितना डिस्टेंस है? डी है। तो हम क्या लिख सकते हैं? आई एक्स एक्स इक्वल टू आई एक्स एक्स इक्वल टू आई, मतलब क्या है कि इसका आपका ये मान लीजिए एक्स डैश है। लेट दिस इज एक्स डैश एंड एक्स एक्सिस। ओके, सो this is I x dash plus d squared into a। तो यहाँ से अगर हमको कोई भी एक चीज पता है और ये डिस्टेंस मालूम है तो हम या तो आई एक्स एक्स फाइंड आउट कर सकते हैं अगर आई एक्स डैश गिवन है। अगर आई
x गिवन है, देन आई एक्स डैश फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, नाउ रेडियस gyration. What is the radius of gyration? It is the perpendicular distance at which the whole area may be assumed to be co-centered, yielding the same second moment of inertia area about the axis under the consideration. So here you understand what is the radius of gyration. तो यहाँ पे देखिए पर्टिकुलर जिस जो एक्सिस से डिस्टेंस है आपके एरिया की, सो यहाँ पे क्या है कि आपका ये देखिए आर वाई वाई मतलब आपका जो एरिया का एक्सिस है, एक्सिया एरिया का जो सेंटर पॉइंट है उसका वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, और ठीक है जो एरिया है उसका एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस है. तो आई वाई वाई का ये फार्मूला होता है, ये आपका पर्टिकुलर जो भी हम रेडियस लिखते हैं. तो यहाँ पे देखिए तो इसका अगर आर हमको निकालना, आर वाई वाई फाइंड आउट करना है तो देन अंडर रूट आई एक्स एक्स डिवाइड बाई ए. सिमिलरली आई एक्स एक्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आई एक्स एक्स डिवाइड बाई ए. Rxx and Ryy are called the radius of gyration. Moment of inertia by the direct integration. Moment of inertia by direct integration. So the moment of inertia, about its horizontal centroid axis rectangle I x naught equal to d by 2 इंटीग्रेशन d प्लस 2. ओके, तो अभी ये आपका एक एरिया है, ठीक है ना, जिसका y डिस्टेंस कितना है dy है. ओके, टोटल डिस्टेंस कितना है d by 2 है यहाँ से यहाँ तक, और ये टोटल कितना है d है. तो यहाँ पे देखिए कि ये एरिया, ये स्मॉल एरिया लिया गया है, तो ये मैक्सिमम कितना जा सकता है यहाँ तक जा सकता है, और मिनिमम कहाँ तक जा सकता है ये यहाँ तक जा सकता है. तो मिनिमम कहाँ तक जा सकता है माइनस डी बाई 2, और मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है डी बाई 2 प्लस डी बाई 2. तो यहीं पे ये आपको गिवन है कि इंटीग्रेशन
माइनस डी बाई टू प्लस डी बाई टू। इसलिए ये आपका इंटीग्रेशन दिया हुआ है। किस एरिया का करना है? ये जो हैचेस एरिया है इसका इंटीग्रेशन आपको करना है। ओके, ठीक है। तो अभी आपको क्या देखना है ये देखिए। तो जब हमारा डी ए वाई स्क्वायर हो गया, डी ए वाई स्क्वायर हो गया, ओके। तो अभी आपका जो ए है वो क्या है? व्हाट इज द ए? अभी देखिए ये डिस्टेंस कितनी है। जैसे ये आपका रेक्टेंगल है ना, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू विड्थ। तो विड्थ कितनी है? बी है। और ये हाइट कितनी है? डी वाई है। तो बी इंटू डी वाई, बी इंटू डी वाई, दैट इज द एरिया। तो अभी यहाँ पे देखेंगे जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? बी इज द कांस्टेंट, बी इज द कांस्टेंट, ओके। और ये y क्यूब हो जाएगा। इंटीग्रेशन आप लोगों को आता होगा, इसलिए मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसका इंटीग्रेशन होगा क्या। ये b आपका कांस्टेंट है तो ये आपका बाहर आ जाएगा, और इसका जो हो जाएगा आपका y क्यूब डिवाइड बाई 3। ये कौन सी चीज आ गई मार्केट में? क्या करना है? इधर आपके इस हाथ से देखिए।
ओके, तो इंटीग्रेशन में ये आपका हो जाएगा पर्टिकुलर सेक्शन, ठीक है ना। तो ये सॉरी, जस्ट मिनट, हाँ, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, बी आपका कांस्टेंट है, बी इज आउटसाइड द बॉक्स एंड y क्यूब, ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा d बाई 2 माइनस में, और d बाई 2 प्लस में। अभी यहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे, ठीक है ना। y की जगह रखेंगे d बाई 2, d बाई 2 का क्यूब माइनस d बाई 2 का क्यूब, और ये रहेगा माइनस यहाँ पे, और इसका क्यूब, ओके, और इसका होल डिवाइड बाई 3। तो अभी इसको हम क्या लिख सकते हैं कि आपका यहाँ पे b है, तो b बाई 3 कॉमन हो जाएगा, सब में है, ठीक है ना। और अंदर का हम सोल्यूशन कर लेते हैं, अंदर का क्या सोल्यूशन कर लेंगे, d क्यूब, और ये कितना हो जाएगा, आपका d क्यूब डिवाइड बाई 8, 2 का क्यूब 8, और ये हो गया माइनस, और अंदर कितना बचेगा, माइनस का स्क्वायर होता है माइनस प्लस, और लेकिन उसका क्यूब होता है माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस डी क्यूब डिवाइड बाई 8, और ये ब्रैकेट में बंद। अभी जब ये ब्रैकेट हटेगा तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं b डिवाइड बाई 3 इन ब्रैकेट, ये हो जाएगा 2d क्यूब डिवाइड बाई 8। अब इस 2 से ये हो जाएगा 4, तो d क्यूब डिवाइड बाई 4। तो अभी इसको हम लिखेंगे, अगर ब्रैकेट हटाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा b d क्यूब, और 3 मल्टीप्लाई 4 दैट इज 12। तो ये आपका यहाँ पे गिवन है। तो ये सोल्यूशन है पर्टिकुलर इंटीग्रेशन का, ठीक है। ओके, तो अभी अगर हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लिखें कि इसके पैरेलल कोई एक्सिस है, ये देखिए एक्स नॉट जो एक्सिस है इसका निकालना है हमको, तो आई एक्स एक्स इक्वल टू आई एक्स नॉट प्लस ए डी स्क्वायर, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पे जो डी बार है, मतलब ये डिस्टेंस कितनी है, डी बाई 2 है, डी बार इक्वल टू डी बाई 2। अभी तो इसकी वैल्यू हमको
कैसे पता चलेगी? ये x0 इधर रखा हुआ है, तो ये देखिए x0 प्लस ए कितना हो जाएगा, बी इंटू ये डी एरिया और इंटू d/2 का होल स्क्वायर। सो इधर हो जाएगा bd³ डिवाइड बाई 12 प्लस bd³ डिवाइड बाई 4, और इसको bd³ डिवाइड बाई 12 प्लस bd³ डिवाइड बाई 4 को एडिशन करेंगे तो आ जाएगा bd³ डिवाइड बाई 3। So this formula give you moment of inertia of a rectangular area about x or about y direction. So students, any question till here? Any doubt? Okay. So horizontal centroid axis. No. Next. This is for the triangular. अभी हम ट्रायंगुलर का ले रहे हैं, ठीक है ना। तो ट्रायंगुलर में हमने एक ये स्मॉल एरिया ले लिया, और इसी एरिया को हमको इंटीग्रेट करना रहता है। वी हैव टू इंटीग्रेट द एरिया टू गेट द एक्चुअल इंटीग्रेशन, सॉरी एक्चुअल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो सी ए ट्रायंगुलर ट्रायंगल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स बेस। अगर हमको इसके बेस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना है, then Ixx equal to integration dy square. This formula is same. Okay, so यहाँ पे dA क्या हो जाएगा, dA तो ये आपका क्या कहते हैं कि जो dy है वो इतना स्मॉल है कि इसको हम एज ए रेक्टेंगल कंसीडर कर सकते हैं। तो ये डिस्टेंस कितना हो गया है, x और dy। तो x dy is the area y square for similar triangle b upon h equal to x upon h minus y। ठीक है ना। अभी सिमिलर ट्रायंगल कैसे हो गया, सिमिलर ट्रायंगल ऐसे हो गया क्योंकि ये आपका पैरेलल है ना, तो सिमिलर ट्रायंगल का थ्योरम लग जाएगा इसमें, सिमिलर ट्रायंगल का थ्योरम लग जाएगा। तो सिमिलर ट्रायंगल का यहाँ पे थ्योरम लग गया, बी अपॉन एच दैट इज दी एक्स अपॉन एच माइनस वाई। ओके, सिमिलर ट्रायंगल हो गया। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट हो गई, एक्स इक्वल टू बी इंटू एच माइनस वाई डिवाइड बाई एच। सो Ixx equal to 0 to h b dot h minus y स्क्वायर dy। तो यहाँ पे ये जो x की वैल्यू है वो x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी गई है, ठीक है, इस इक्वेशन में। तो अभी यहाँ पे b कांस्टेंट है, h y³ डिवाइड बाई 3 माइनस y⁴ डिवाइड बाई 4 इंटू h। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, bh³ डिवाइड बाई 12। तो देखा जाए तो फार्मूला इज सेम, बट वहां पे क्या है कि जो आपकी
हाइट थी रेक्टेंगुलर की, यहाँ पे भी हमारा जो ट्रायंगल है उसकी हाइट गिवन है। मतलब क्या हो जाएगा, अगर हमको ट्रायंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है तो बी इज द बेस इनटू height cube divided by 12, that is the moment of inertia about its base. Now moment of inertia about its centroid axis, ठीक है ना। अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये सेंट्रॉयड एक्सिस हो गया, यानी वो सेंट्रॉयड एक्सिस का मीनिंग क्या हुआ, सेंट्रॉयड एक्सिस मीनिंग द एक्सिस पासेस थ्रू द सेंट्रॉयड। तो h/3 पे होता है ये, है ना। तो अभी यहाँ पे हमको ये फार्मूला मालूम है सेंट्रॉयड पे, है ना। तो यहाँ से आई एक्स नोट क्या हो जाएगा, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा माइनस में, तो आई एक्स एक्स क्या है, बी एच क्यूब डिवाइड बाई 12 माइनस एरिया क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी h/2 इंटू h/3 स्क्वायर। सो टोटल कितना आ जाएगा अबाउट दिस सेंट्रॉयड, दैट इज द बी एच क्यूब डिवाइड बाई 36। सो स्टूडेंट्स, this is about today lecture. So if you have any query from